اب ایک طرف پاکستان کی بار جو ہے چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی موجودگی میں انتخابات نہیں ہو سکتے، اور دوسری طرف چیف الیکشن کمشنر یہ بتا رہا ہے کہ میں کتنا آزاد ہوں اور الیکشن کمیشن آزاد انتخابات کے لیے بڑے بڑے اہم بیوروکریٹس کو بھی ٹیک آن کر سکتا ہے۔ احد چیمہ جن کے نیچے پاکستان کی دارالخلافہ کی بیوروکریسی کام کرتی ہے، ان کو ہٹانے کا حکم جاری کر دیا ہے، اور حسن فواد جن کے پاس 2 اہم منسٹریز ہیں، ان کی قسمت کا فیصلہ 21 تاریخ کو کرنا ہے۔ عثمان جاوید کے پاس چلتے ہیں جو آج کی حیران کن ڈیولپمنٹس کو کور کر رہے ہیں۔ عثمان بہت شکریہ۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ آج احد چیمہ کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی طرف سے کیا بیان جاری ہوا تاکہ اس کے اوپر ہم مزید بات کریں؟ دیکھیں، احد چیمہ کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں درخواست گزار عزیز الدین کاکا کی جانب سے ایک پٹیشن فائل کی گئی تھی، اور اس پٹیشن میں احد چیمہ، فواد حسن فواد اور ڈاکٹر توقیر شاہ کی جانبداری کے حوالے سے سوالات اٹھائے تھے، اور انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ یہ تینوں افراد ان کی موجودگی میں پاکستان میں جو آئندہ عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں وہ صاف شفاف نہیں ہو سکتے، اور ان کی جانبداری کے اوپر انہوں نے سوال اٹھایا، اور آج الیکشن کمیشن نے اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے احد چیمہ کی حد تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کی درخواست گزار کا جو موقف تھا اس کو تسلیم کرتے ہوئے ان کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دیا، اور کہا سیکرٹری کیبنٹ کو انہوں نے یہ ڈائریکشنز دی کہ فی الفور ان کو عہدے سے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، اور ان کے اس حوالے سے یہ کہنا تھا کہ ان کی موجودگی میں ملک بھر میں صاف شفاف۔ اچھا عثمان، اگر میں جان پاؤں، ہمارے ویورز یہ جاننا چاہیں گے کہ احد چیمہ کون ہے اور ہم کیوں اس کو زیر بحث لا رہے ہیں؟ ایک بیوروکریٹ ہے، اس کو ہٹا دیا جائے تو اس میں کیا کوئی بڑی خبر ہے؟ یہ یقینی طور پہ ایک بڑی خبر ہے، کیونکہ احد چیمہ کی ایفیلیشن پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ مانی جاتی ہے، اور جو پی ڈی ایم کا دور حکومت تھا گزشتہ 16 ماہ، اس میں احد چیمہ کا ایک کلیدی کردار تھا، اور سابق وزیراعظم شہباز شریف کے وہ مشیر تھے، اور اس سے کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے جب وہ بطور بیوروکریٹ بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے وہ قریب سمجھے جاتے رہے ہیں، اور ان کا خاص طور پر ان کا بڑا اہم کردار تھا، اور پی ڈی ایم کی دور حکومت میں بھی ان کا خاصا اہم کردار تھا، اور اب موجودہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا اس میں بھی احد چیمہ ان کا اہم کردار تھا، اور درخواست گزار کی جانب سے بھی یہی پٹیشن دائر کی گئی تھی کہ آرٹیکل 218 جو پاکستان کا آئین ہے اس میں یہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ جب وفاقی کیبنٹ تشکیل دی جائے کیئر ٹیکر کے حوالے سے تو اس میں جانبدار لوگ نہ ہوں، غیر جانبدار لوگ ہوں۔ اچھا، اب یہ معیار عثمان کا کلام جو معیار مقرر کیا گیا یہ بڑا اہم ہے، اس کے اندر فواد حسن فواد کا بھی تذکرہ ہے، ان کا فیصلہ جو ہے 21 تاریخ کو ہوگا۔ فواد حسن فواد کے پاس تو بڑی اہم منسٹریز ہیں، پرائیویٹائزیشن کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں، ان کے پاس سپورٹس کی منسٹری بھی ابھی حالیہ ان کو ملی۔ ان کا کیس سنا جائے گا 21 کو یا فیصلہ ہوگا، کیا ہے؟ دیکھیے، آج جب فیصلہ ہوا احد چیمہ کے حوالے سے تو میں نے جب الیکشن کمیشن کے ذرائع ہیں ان سے اس بات کی تصدیق کی کہ آج تو احد چیمہ کے ساتھ فواد حسن فواد کا بھی فیصلہ سنانا تھا، تو انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ 21 دسمبر کو ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا فواد حسن فواد کا فیصلہ 21 دسمبر کو کیا جائے گا یا اس کیس کی سماعت کی جائے گی، مزید دلائل دیے جائیں گے؟ تو انہوں نے اس حوالے سے کسی قسم کی تصدیق اور تردید نہیں کی۔ میرا پہلا سوال ان سے تھا کہ احد چیمہ کی پٹیشن کے اوپر سماعت ہوگی، تو انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے پھر نیکسٹ ان سے سوال کیا کہ کیا فواد حسن فواد کی قسمت کا فیصلہ 21 دسمبر کو ہوگا، تو انہوں نے کہا یہ بھی۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق اور تردید کرنے سے انکار کر دیا، اور ذرائع الیکشن کمیشن نے اس بات کی تصدیق کی کہ 21 دسمبر کو سماعت ہوگی یا فیصلہ ہوگا، اس کا فیصلہ 21 دسمبر کو ہی ہوگا۔ ابھی ان کے حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن جو معیار مقرر کر دیا ہے کہ آپ کو پولیٹیکلی نیوٹرل بندے چاہیے، تو اگر ہم وفاقی کابینہ موجود ہے اور ان کی جو ایڈوائزرز ہیں ان کی لسٹ دیکھیں موجودہ، اس کے اندر تو عثمان 90% لوگ ایسے ہیں جن کا کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی تعلق نکلتا ہے، چاہے وہ ٹیکنوکریٹس بھی ہوں تو ان کے خاندان کے تعلقات موجود ہیں، بزنس کے تعلقات موجود ہیں۔ ہمارے اپنے جو انفارمیشن منسٹر ہیں ان کے بارے میں بھی سوالیہ نشان اٹھایا جائے گا۔ جو پرائم منسٹر ہیں، انفارمیشن منسٹر کو تو چھوڑ دیں، پرائم منسٹر صاحب جو ہیں پرائم منسٹر بننے سے پہلے جو آؤٹ گوئنگ انٹیریئر منسٹر تھے ان کے ساتھ مل کر نون لیگ جوائن کرنے کی باتیں ہو رہی تھی، اب انٹیریئر منسٹر نے ریزائن کر کے پیپلز پارٹی جوائن کر لی، تو پھر اس کابینہ میں سے یہاں پر اور صوبوں کے اندر کون بچے گا؟ اس معیار پر کون پورا اترے گا؟
देखिए, आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दे दिया है, अब जो दीगर जो लोग हैं जिनके ऊपर ये इल्ज़ामात हैं कि वो भी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ उनकी एफिलिएशन है, और आपने जिस तरह कहा सरफराज बुगटी ने इलेक्शन शेड्यूल ऐलान होने से कुछ घंटे कबल ही उनका इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ ने मंजूर किया था। और आज जो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला सुनाया, उस अगर पैराए में बात की जाए तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वफाकी निगरान जो कैबिनेट है उसके ऊपर सवालात उठाए गए, और जब CEC का इजलास हुआ तो उसमें भी पीपल्स पार्टी की जानिब से इसी खदशात का इजहार किया गया कि निगरान जो कैबिनेट है उसमें जितने भी मेंबर हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि उनकी एफिलिएशन भी बाप पार्टी के साथ थी, और जब वो वज़ीर-ए-आज़म बने तो उसके बाद उन्होंने सेनेटरशिप और बाप पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान करते हुए इस्तीफ़ा दिया था। सरफराज बुगटी भी बाप पार्टी का हिस्सा रहे, और जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हुआ तो उससे 13 तारीख को उनकी जानिब से इस्तीफ़ा जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को पेश किया गया था। लेकिन जिस दिन इलेक्शन शेड्यूल जारी होना था, इलेक्शन शेड्यूल जारी होने से चंद घंटे कबल ही उनका रिज़ाइन एक्सेप्ट हुआ। तो दीगर जो लोग हैं, जॉर्ज खलील हैं, उनके ऊपर भी सीरियस खदशात हैं, और जितनी भी कैबिनेट है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उनसे रुजू किया और अपनी शिकायत दर्ज करवाई तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ को एक ख़त लिखा गया था, और ख़त में यही मुतालबा किया गया था, और आर्टिकल 218 का भी जिक्र किया गया, जिस तरह दरख्वास्त गुजार ने आर्टिकल 218 का जिक्र किया, और इलेक्शन कमीशन ने भी जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखा था उसमें भी यही मुतालबा मयार ये मुकर्रर कर दिया है। उस्मान, बहुत शुक्रिया। अब हर कोई हर किसी के इस्तीफे का मुतालबा कर रहा है और इंतखाबात सर पर हैं, अल्लाह खैर करे। हिबा फवाद चौधरी अब अपने आप को सियासत में लॉन्च कर रही हैं, और लॉन्च करते हुए उन्होंने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। जेएलएम प्रेस क्लब के सामने खड़े होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर वावेला ये मचाया कि जेएलएम प्रेस क्लब को ताले लगा दिए गए हैं, और इल्ज़ाम उन्होंने धरा अपने ससुराल के ऊपर, अपने देवर के ऊपर, उनके रिश्तेदारों के ऊपर, और कहा कि वो फवाद चौधरी की कैंपेन चलाना चाहती हैं, उनके नज़रियात का प्रचार करना चाहती हैं, उनको इलेक्शन कैंपेन की इजाज़त नहीं दी जा रही, और ये भी बताया कि वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगी एज अ कवर कैंडिडेट, जो फवाद चौधरी अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो। अब इशू यकीन सीरियस है, इसके अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी इन्वॉल्व है। प्रेस क्लब को ताले नहीं लगने चाहिए थे। अगर वहाँ पर वाक़तन लेजिटिमेट एक्टर्स आकर अपना मुद्दा बयान करना चाहते हैं तो उसकी इजाज़त होनी चाहिए। किसी भी शख्स को कैंपेन करने की इजाज़त होनी चाहिए, किसी भी शख्स को कागजात नामजदगी जमा कराने की इजाज़त होनी चाहिए, और है इसके ऊपर तो कोई इससे कलाम नहीं है। लेकिन जब विक्टिम कार्ड खेला जाता है तो उसका तज्जिया करना ज़रूरी है। अब हिबा साहबा का कहना ये है कि फवाद चौधरी ने एक अपनी तरफ से उनको नामज़द किया हुआ है कि वो उनकी कैंपेन चलाएं, उनके जो रिश्तेदार हैं उससे इत्तफाक नहीं करते। अब बड़ा इशू तो ये है कि जो प्रेस क्लब के ऊपर ताले लगे, ये बहुत ही एक सितम ज़रीफ़ी है कि ताले लगवाने का बंदोबस्त जब प्रेस क्लब पर किया गया तो वो फवाद चौधरी ने ही किया था। इस वक्त आप जो स्क्रीन के ऊपर विजुअल्स देख रहे हैं उसके अंदर आपको नज़र आएगा कि फवाद चौधरी ने जब इस प्रेस क्लब के अंदर ताले लगवाए तो वहाँ के जो सहाफ़ी हैं, जो मुखालिफ ग्रुप है, उसने कितना एहतजाज किया। उस वक्त की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ये बताया। प्रेस क्लब्स तो वहाँ आवाम की जो एक आईना होते हैं, वहाँ की लोगों की तर्जुमानी करते हैं और एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो लोकल कम्युनिटी होती है उसके अंदर। और वहाँ का इस तरह बंद हो जाना प्रेस क्लब का, मेरे ख्याल में ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बात है, और इसको चाहिए कि जल्द से जल्द इसको खोला जाए। और ये वजह भी बतानी चाहिए कि ये मेरे ख्याल में ये इसी तरह के कवानीन माइंड सेट हैं जो इस तरह के प्रेस क्लब्स हों, टीवी चैनल्स हों, सहाफ़ी की ज़बान बंदी हो, स्क्रीन्स बंद कर दी जाए, सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए, सिर्फ मुल्क को महंगाई, मुफलसी, बीमारी, गुर्बत, इससे बंद करना चाहते हैं, और बाकी रह गई ज़बानें वो इन कवानीन से बंद कराना चाहते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो माजी में आप करते हैं वो आपको हॉन्ट करता है, अब वही प्रेस क्लब है और वही ताले हैं जो अब हिबा चौधरी को भाते नहीं हैं। इसके साथ ये भी हमें देखना होगा कि हिबा फवाद चौधरी जो हैं वो किस नज़रिए की बात कर रही हैं, वो किस फवाद चौधरी के नज़रिए का प्रचार कर रही हैं जेएलएम के अंदर, वो कौन से लोगों की नुमाइंदगी कर रही हैं। वो उस फवाद चौधरी का जिक्र कर रही हैं जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ खड़ा हुआ था, उस फवाद चौधरी के नज़रिए का जिक्र कर रही हैं जो क्यू लीग में था, उस फवाद चौधरी का जिक्र कर रही हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ था, उस फवाद चौधरी का जिक्र कर रही हैं जो इस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा नुमाइंदा था, जनरल फैज़ के ज़रिए
पंजाब का चीफ मिनिस्टर / गवर्नर बनना चाहता था, उस फवाद चौधरी का जिक्र कर रही हैं। जो PTI को छोड़ के इस्तेकाम पार्टी के अंदर गया, उस फवाद चौधरी का जिक्र कर रही हैं। जो इस्तेकाम पार्टी के अंदर बैठा हुआ मुंह छुपा रहा था, उस फवाद चौधरी का जिक्र कर रही हैं कि जो कह रहा था कि छीन के लेंगे आज़ादी, तुम्हारा बाप भी देगा आज़ादी। उस फवाद चौधरी का जिक्र कर रही हैं जिसने 9 मई को इंस्टिगेट किया। और आपको बताते चलें, क्या उस फवाद चौधरी का जिक्र कर रही हैं जो इंटेलिजेंस की बहुत मुस्तनद रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी एम्बेसडर के सामने बैठकर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की ऐसी की तैसी करता था और बताता था कि फ़ौज के अज़ाइम क्या हैं और इमरान खान के लिए कैंपेन करता था। उस फवाद चौधरी की कैंपेन करेंगी हिबा चौधरी, जो अमेरिकन एम्बेसडर के साथ एक दाएं और एक बाएं खड़े होकर एक तस्वीरें खिंचवाता था। उस फवाद चौधरी का जिक्र करेंगी, उसे कैंपेन चलाएंगी जो भागते हुए गिरता पड़ता सुप्रीम कोर्ट की दीवारों को फलांगने की कोशिश कर रहा था, या उसका जिक्र करेंगी जो अडियाला जेल के अंदर है। ये एक बड़ा इशू है कि फवाद चौधरी कौन सा है जिसको वो रिप्रेजेंट करेंगी। फवाद चौधरी की जो सोच है, जो उसका नज़रिया है, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहता, सिर्फ उनके ट्वीट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक ट्वीट आप देख रहे हैं और मैं आहिस्ता आहिस्ता इसका आगाज़ कर रहा हूँ। एक हफ्ते से सुप्रीम कोर्ट के एक अंडर ट्रायल जज की तकरीरें सुन रहे हैं, तो अगर जवाब दिया तो तौहीन हो गई कि भाषण आ जाएंगे। मोहतरम, अगर आपको भी अपने गॉड फादर इफ्तिखार चौधरी की तरह सियासत का शौक़ है तो मुस्ताफ़े होकर कौंसलर का इलेक्शन लड़ें और मकबूलियत और अदम मकबूलियत दोनों का अंदाज़ा हो जाएगा। आपको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है किसके बारे में बात कर रहे थे। ये मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की बात कर रहे थे। दूसरे सियासतदानों के बारे में फवाद चौधरी साहब के ख्यालात क्या हैं। मरीम नवाज़ की तकरीर, मेरे अब्बू, मैं और इमरान खान बहुत ख़राब हैं से आगे नहीं बढ़ती। बिगड़ी हुई अमीरज़ादी की तरह इन्हें अपनी ज़बान पर कंट्रोल नहीं। जिन्होंने घर का किचन नहीं चलाया वो एटमी ताकत का वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देखती है। दुख और हमदर्दी नाम निहाद सीनियर लीडरशिप से जो हाथ बांधे पीछे खड़े हैं। एक और ट्वीट में मरीम नवाज़ की गुफ्तगू से अंदाज़ा लगा लें, बेचारी बिल्कुल रह गई है। मैंने पहले ही कहा था कि ख़वातीन इस ग्रुप में सिर्फ मेकअप करना है और बाहर भाग जाना है। रियासत से ऐसे फरमाइशें हो रही हैं जैसे रियासत इनका कुक हो, ये कर दो वो कर दो, अहमक औरत। इसके अलावा एक और ट्वीट किया, मरीम नवाज़ और मरीम ज़ेब की बातें सुनकर नून लीग पर पंजाबी की कहावत याद आती है, वन सवन्ने चौधरी ते हुंडी रन प्रधान। ये फवाद चौधरी साहब की मैं ज़रा जहनीत का अक्स आपके सामने रख रहा हूँ, जिनकी हमदर्दी का वोट लेने के लिए हिबा साहबा निकली हुई हैं। दूसरे लोगों के बारे में क्या, ये वही शख्स है जिसने सहाफ़ियों को या जो तजिया निगार है उनको थप्पड़ भी रसीद किए और फिर उसके ऊपर इतराया भी। पोनी और रबर बैंड लगाकर और खुसरों वाली शर्ट पहनकर इंटेलेक्चुअल बनने की एक्टिंग ना करना बेटा। अभी सलमान की मेहरबानी है जिसने एयरवाई से निकालने की वजह नहीं बताई। इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। इसको 2 करोड़ के इश्तहार दे देता तो दिन रात कुत्ते की तरह मेरा पाँव चाटता। बीवी बच्चे अमेरिका में पड़े हुए हैं, यहाँ भौंकने की नौकरी कर रहा है। हामिद मीर के बारे में उनकी तस्वीर के ऊपर उन्होंने कमेंट किया, अनबिलीवेबल, इट टुक मी अ टाइम टू डिफरेंशिएट बिटवीन इतना बड़ा मुंह एंड, उसके बाद मैंने इसको ब्लर कर दिया, हम उसको दिखाना नहीं चाहते जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और ये भी लिखा कि हामिद मीर का नाम लेकर उनको इडियट कहा और ये भी कहा कि मेरी क्रिटिसिज्म के बारे में जो आप बात कर रहे हैं कि क्या आपका ख्याल है कि मेरी लीडरशिप को पता नहीं है, बर्नआउट लगाओ जाके, ये लिखा बीच में। इसके अलावा उन्होंने 9 मई के अंदर जो इंसाइटमेंट फैलाई वो भी अब रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब बुनियादी बात यह है कि हिबा फवाद चौधरी अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिस फवाद चौधरी की नुमाइंदगी कर रहे हैं उसकी ज़बान घुटनों तक लटकी हुई है। वो बदतरीन किस्म की सियासत और सकाफ़त का नुमाइंदा है। उसने लोगों को मार लगाई है, उनके खिलाफ इल्ज़ामात लगाए हैं, गंदी तरीन ज़ुबान इस्तेमाल की है। तो हिबा फवाद चौधरी जितनी मर्जी हमदर्दियाँ समेट लें, समेटनी चाहिए उनको अगर उनका हक बनता है, लेकिन जिस फवाद चौधरी की वो रिप्रेजेंटेटिव है उस फवाद चौधरी का नज़रिया उसके हर ट्वीट के अंदर, उसके हर बयान के अंदर दर्ज है। अगर जेएलएम के लोगों ने इसको बुनियाद बनाकर वोट दिए तो उतने ही वोट मिलेंगे जितने इनको 2002 में सूबाई असम्बली की सीट पर मिले थे, यानी 161।